ग्लोबली क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं इस समय पे? कोविड में गलत डिसीजन किया टू इम्पोज दैट मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन क्योंकि एग्रीकल्चर में आपकी 50% लेबर कंट्री की उसमें इन्वॉल्व है और आउटपुट मात्र 15% आता है। भविष्य के उत्पादन का आधार अगर आप 2-3 बड़ी चीज़ों को लें, अनफॉर्चुनेटली हमने इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। कि पीएलआई से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में एस्टैब्लिश होगी, बाहर से एक तो एफडीआई आएगा, विद टाइम जो कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है कंट्री में वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। ट्रम्प के इस थ्रेट्स के कारण अगर हम अमेरिका के साथ भी गड़बड़ा जाएंगे, पूरी जीडीपी 100% अगर हम माने तो उनको 4% में बांटा जाता है, विच इज़ प्राइवेट कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड देन आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, लेट्स से जो नेट ट्रेड। PLI is unfortunately is another policy which has grossly underperformed. The world is shifting from a unipolar to a multipolar global order. Trump is back and power is realigning. AI is rising, reshaping jobs and rewriting futures. The planet is warming up while the birth rates fall. To see these in isolation is to miss the bigger picture. A world which is unsteady, unpredictable and transforming before our eyes. Let's make sense of the happening from India's lens, one conversation at a time. Welcome to the Nagrik Podcast with Hari. We're extremely delighted to have you as part of the Nagrik Podcast today. Thank you, Hari. I am also very impressed and happy to be with you, and all the best for your new venture. I think this your voice carries to a lot of people and make impact. Thank you so much, sir. And so I think you've had a fascinating journey. You joined the coveted Indian Administrative Services in the early 80s, in 1983 to be precise. So tell us about that journey. How did it go? What did the last few years in the Modi administration working at the center level entail for you? So Hari, this indeed was a fascinating journey. I enjoyed every moment of it. This offered enormous opportunity to work in the interiors of India, in the high policy levels of the country, even international organizations like World Bank. Right. Joined in 83. Rajasthan happened to be my cadre because I did relatively well in the examinations, securing 4th position in the country. In 2000, I got a posting in Economic Affairs, Ministry of Finance as a director. That started my sort of national career, so to say. In 2005, I went back to Rajasthan. We initiated something called Bhamasha, which is actually the precursor of the GEM Trinity and what you have today, the Ladli Bahan Yojanas and other sort of things. Right. So 17 years back, we could introduce a scheme of Interesting. and providing them cash assistance. Right. That was the first such experiment in the country at that time. So again, very interesting opportunity. Right. In 2014, Modi government decided to send me to Washington as India's executive director in the World Bank. Great. Again, that provided me excellent global sort of exposure Right. in development financing and developmental policy making. So that was fabulous. Right. And I came back in 2017 to be Economic Affairs Secretary, which also led to be the Finance Secretary. Right. In 2019, I decided this is somewhat unusual to put in my papers and take voluntary retirement. So a fascinating career, I must say. I enjoyed all part of it. Core thematics, or let's say the ideas that are being championed today in terms of the 10 trillion economy for India, were the foundations of those were led under your guidance in the finance ministry. Correct. So I was lucky to be right there and make contribution to that. So you refer to this 10 trillion dream kind of thing. This was actually announced in the interim budget 2019-20. Right. When I happened to be the secretary in charge of the budget making, and was very happy to put in that line. Of course, it was with the approval of the government at the highest level. Since I got associated with that dream, so to say, I decided that why not track the progress of the country towards that goal. Right. That is what made me to write this, bring everything together in this first book, which was aptly named
the $10 trillion dream, the state of Indian economy and the policy reforms, I have recently come up with a first stock take kind of situation. Where have we moved in 5 years? So that is and in the same series. So that book is titled The $10 trillion Dream Dented. Right. So a state of Indian economy and the policy reform during Modi 2.0. Right. So that is I feel highly committed to this. Right. I intend to pursue this tracking for as many years as possible in future. So let us see how things work out. Great, sir. No, definitely looking forward to, I think, your commentary on, and specifically you tracking on what's going right, what's going wrong, what additional changes do we need to make Exactly. to realize and achieve, this vision. Specifically, I think आज हम ये चाहेंगे कि जो discussion है वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें. सो आई थिंक सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे में कैप्चर की जाती है, तो वी वुड स्टार्ट विद दैट. Then we'll move into the latest budget that was tabled by Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman. Right. And then we'll try to connect that on what changes have been announced in this budget to your particular vision of, let's say, the $10 trillion dream, and what sort of differentials you still see. Because again, I think still there are a lot many things that can be done that haven't been done, let's say, or certain policy reforms which are still, major reforms which are still pending. Very true. I think this is perfectly organized. So do take it that way. Perfect. Wonderful. 2024 में ग्लोबली राइट काफ़ी सारे देशों में इलेक्शंस होते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट्स चेंज भी होती हैं, एंड इवन विद इन इंडिया ऑल्दो गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई बट एटलीस्ट जो मैंडेट था वो थोड़ा सा फ्रैक्चर होता है, राइट. एंड इसके बैकड्रॉप में आई थिंक इवन जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो जो अर्ली फाइंडिंग्स हैं उसकी यही है कि जो अभी के एग्जिस्टिंग टाइम है वो काफ़ी हद तक जियोपॉलिटिकली अनसर्टन एनवायरनमेंट में है. Worldwide, I think right-leaning parties are in power now, right, in a lot of countries, including the US. And उसकी वजह से थोड़ा सा protectionist ideas, I think, grow कर रहे हैं, right. And therefore आप देख सकते हैं कि जो नए president हैं US के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने tariffs के around एक काफ़ी massive, पिछले कुछ हफ्तों में actions लिए, steps लिए to put tariffs on reciprocal tariffs, let's say, right. इंडिया का जो average growth है इस समय वो कहीं ना कहीं अपने डेकेडल ग्रोथ के आसपास ही है. तो इंडिया का पिछले 10 सालों में ग्रोथ 6% के आसपास रहा है. व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फ्रॉम अ ग्लोबल, सो वील स्टार्ट टॉप डाउन बेसिकली, कि ग्लोबली क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं इस समय पे, एंड व्हाट कुड बी आवर रिस्पॉन्स इंटरनली, व्हाट चेंजेस वी कैन मेक टू काउंटर दोज आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, सो टू से. देखिए हरी, आज के समय में कोई देश इकोनॉमिक आइलैंड नहीं है, राइट. कोई भी देश, राइट. दुनिया की जो इकोनॉमी है, दुनिया का जो फाइनेंस है, वो बहुत इंटीग्रेटेड हो चुका है. बिल्कुल, राइट. अब हम हिंदुस्तान की स्थिति में भी देखें तो हमारी रफली जो 350 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, राइट. तो हमारा अभी भी रफली एक्सपोर्ट होता है जो दोनों चीज़ों का मिला के, गुड्स का और सर्विसेज का, वो करीब $750 बिलियन है, राइट. तो रफली 20% ऑफ जो हम यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं. बिल्कुल, ठीक है. हमारा इंपोर्ट करीब $900 बिलियन के आसपास है, 850-900 बिलियन, वो भी अनादर 20-25%, राइट. तो एक मेज़र होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ऐड करो और अपने जीडीपी से डिवाइड करो तो वो एक ग्लोबल इंटीग्रेशन का एक मेज़र है कि भाई आपका बिजनेस और आपकी जो जीडीपी है वो कितना इंटीग्रेटेड है, राइट. सो इवन हिंदुस्तान की इकोनॉमी करीब 40-45% आज के दिन ग्लोबली इंटीग्रेटेड है. इंटरेस्टिंग, राइट. बहुत सारे और देश हैं जिनकी तो इससे भी ज़्यादा है. कुछ देशों की 60%, कुछ देशों की 65%, कुछ चाइना की और भी ज़्यादा, चाइना की काफ़ी ज़्यादा हो. राइट. सो एक चीज़ तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि कोई
ऐसी धारणा बनाए कि देश की इकोनॉमी पे जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मेजर्स का असर नहीं होता था या नहीं होता है या नहीं हो, ऐसी धारणा का कोई मायना नहीं। बिल्कुल राइट। आपको हमेशा से ही पिछले 50 सालों से और अभी भी एक ग्लोबल इकोनॉमी, हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया आज एक कुटुंब है। बिल्कुल राइट। तो उस कुटुंब में जैसे हम देश में पैदा करके व्यापार करते हैं, उसी तरह से दुनिया के साथ आज दुनिया पूरी चीज़ पैदा करती है और एक दूसरे से व्यापार करती है। बिल्कुल। तो मेरा ये सॉर्ट ऑफ निष्कर्ष है कि हमें ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ या सर्टेनिटीज़ को अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट पिछले 50-60 साल से और अभी भी ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है। अनफॉर्चुनेटली हम उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं पाए। बिल्कुल राइट। बाकी दुनिया एक्चुअली एक्सपोर्ट लेड करके ग्रोथ बना पाई थी। बिल्कुल। चाहे आप ईस्ट एशिया का कोई सा भी देश देख लीजिए, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, सब की जो ग्रोथ हुई है वो बेसिकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है। बिल्कुल। और हम वो नहीं कमा पाए, वो उस अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं कर पाए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक फोकस्ड हो गए थे। बिल्कुल। सेल्फ रिलायंस। और अभी जो पॉलिसी कई बार हम सुनते हैं, आत्मनिर्भर भारत, राइट, या हम बहुत सारे टैरिफ लगा के ये सोचते हैं कि भाई हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे देंगे, ये पॉलिसीज़ नहीं सक्सीड करेंगी। तो आपका जो सवाल कि इस स्थिति में हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, मुझे जो समझ आती है कि देखिए फ्यूचर है वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का ही ले लो, सर्विसेज में तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल, बट मैन्युफैक्चरिंग में हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो भविष्य की उत्पादन का आधार बनेंगे। टेक्सटाइल या ये चीज़ें अब भविष्य के उत्पादन का आधार नहीं है। बिल्कुल। भविष्य के उत्पादन का आधार अगर आप 2-3 बड़ी चीज़ों को लें तो आज के दिन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, आज के दिन है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के सारे इक्विपमेंट, सोलर मॉड्यूल्स हो, सेल्स हो, या ये हो, या फिर और या डिजिटल, राइट, या डिजिटल जो सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये है फ्यूचर का प्रोडक्शन जो ड्राइव करेगा, राइट। अनफॉर्चुनेटली हमने इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बिल्कुल, और ना इनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में और इनमें। और दूसरी चीज़ जो हम नहीं कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे हैं कि जो आज के दिन दुनिया में इस चीज़ के टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं, राइट, स्पेशली लेट अस से चाइना, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे रिन्यूएबल्स हो, इसमें एक्चुअली चाइना इज़ द ग्लोबल लीडर। बट हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम इसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। सो जब अगर हम ना टेक्नोलॉजी अगर अपने पास डेवलप कर पाए हैं और ना जो टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो हम ग्रो कैसे करेंगे? सो मुझे बहुत आशा नहीं लगती कि जब तक अगर हम ये दो फंडामेंटल चेंज ना करें कि हम कैसे अपनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ा लेंगे। ये PLIs या मेक इन इंडिया नाम पे या आत्मनिर्भरता के हिसाब से आप टैरिफ लगा दो, इससे हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी। इंटरेस्टिंग। तो सर आप बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड लुकिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जो कि EV, रिन्यूएबल्स या क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, तो उन तीनों में ही जैसे कि आई थिंक काफ़ी लोग जानते हैं कि चाइना हैज़ काफ़ी हद तक पूरा मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कैप्चर कर रखा है चाइना ने। करेक्ट। तो एक तरीका जो दो मतलब बेसिक लेवल पे मिस्टेक्स या चेंजेस इंडिया को करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो प्रोटेक्शनिज्म है थ्रू टैरिफ्स वो हटाए जाएं ताकि कॉस्ट जो इम्पोर्ट है इन प्रोडक्ट्स का वो इंक्रीज़ हो और कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप भी क्रिएट की जाए विद जो आई थिंक
जिसके पिछले 1 या 2 साल में कुछ केसेस दिख रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, आईफोन्स का एक कॉम्प्लेक्स जो। तो आपने इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र किया। पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में नागेश्वरन जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव किया था अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि हमें चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप बनानी चाहिए। राइट। लेकिन हमने वो नहीं किया। सरकार के मंत्रियों ने बाद में बयान देके कहा कि नहीं हम तो चाइना, हमारी जो पॉलिसी है अभी, हमने एक पॉलिसी बना रखी है कि जिनकी बॉर्डर हमारे साथ है उसमें बेसिकली चाइना ही आता है, बाकी तो इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग नेशंस है नहीं। सो उनको कोई भी वो यहाँ पे प्रस्ताव करें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हम उसकी इंडिविजुअल प्रपोजल की स्क्रूटनी करते हैं। बिल्कुल। और उस स्क्रूटनी के प्रोसेस में उसको पट के रखते हैं, उसको होने नहीं देते। ठीक है। तो इफेक्टिवली जो इकोनॉमिक सर्वे में भी सेंसिबल बात कही, तो वो भी हम नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे ग्रो। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं जो आपने जिक्र किया ट्रम्प को लेके। सो ट्रम्प ये रेसिप्रोकल टैरिफ या हाई टैरिफ लगाना, जैसे हमारी स्टील प्रोडक्ट्स पे भी, अब ऑटोमोबाइल्स पे भी बात कर रहे हैं। सो ट्रम्प अब दुनिया में ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, लेट्स से अमेरिका भी कई चीज़ों में लीडर है, सेमीकंडक्टर्स में, एआई चिप्स में और इन चीज़ों में दे आर स्टिल दे आर द लीडर्स, राइट। उनके साथ हम बिजनेस करना चाहते थे फिर भी, राइट। लेकिन हमने अपने टैरिफ नहीं घटाने की सोच रखी थी। बिल्कुल। तो अब ट्रम्प के इस थ्रेट्स के कारण से और इस एटीट्यूड के कारण से अब हम टैरिफ को एडजस्ट करना शुरू कर दिए। बिल्कुल। बजट में हमने कुछ टैरिफ को कम किया, मोटरसाइकिल्स पे, मोटर कार पे थोड़ा बहुत, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही चीज़ों पे हुआ है, कुछ ही चीज़ों पे हुआ है। हो सकता है ऐसी काफ़ी संभावना, क्योंकि अगर आप जो 2 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर्स हैं दुनिया की सोडो से फॉर द फ्यूचर गुड्स, राइट, I am not talking about the old things, not textiles, textiles or food processing or making steel. Steel, etc. is also the old one now. Right. Cement, the old economy manufacturing, right? The future is this. So, अगर हम अमेरिका के साथ भी गड़बड़ा जाएंगे, जैसे हम चाइना के साथ गड़बड़ाए हुए हैं, तो फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग तो और बढ़ जाएगी। इंटरेस्टिंग। So बेसिकली जो 2 सबसे बड़े देश हैं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के, यूएस और चाइना, उन दोनों को ही अगर मतलब इंडिया उन दोनों के साथ ही थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रिलेशन मेंटेन, वेरी प्रोएक्टिव, नॉट रिस्ट्रिक्ट। हम अभी रिस्ट्रिक्टिव कर रहे हैं, तो हमें शुड हैव ए वेरी प्रोएक्टिव रिलेशन, राइट। इंडियन एंटरप्राइज इज फैबुलस, वी नो हाउ टू डू बिजनेस, राइट। जहाँ पे भी हम सर्विसेज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सर्विसेज में हम हर किसी के साथ दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल, राइट। बट मैन्युफैक्चरिंग में हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की पॉलिसी अपनाई, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम मात खाते गए। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान का जो एंटरप्रेन्योर है, अगर उसको रियल टफ सिचुएशन में compete करने का मौका दिया जाए, तो वो दुनिया के साथ पार्टनरशिप करके मैन्युफैक्चरिंग कर ले। आई थिंक अब यहाँ से एक बार हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में बात की कि कैसे इंडिया का जो 2 सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ थोड़ा एक रिस्ट्रिक्टिव रिलेशन है। पूरी जीडीपी 100% अगर हम माने तो उनको 4% में बांटा जाता है, विच इज़ प्राइवेट कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड देन आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, लेट्स से जो नेट ट्रेड, ये आई थिंक जीडीपी का 100% फैक्टर है। आई थिंक पिछले 6 से 7 सालों में हमने एक स्लाइट अप ट्रेंड नोट किया है प्राइवेट कंजम्पशन में स्पेसिफिकली। तो क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आते हैं? देखिए क्या हुआ है पिछले 5 साल में, 2019 के बाद 2019-20 हमारे देश का एक स्लो डाउन ईयर था। उस साल ग्रोथ भी बहुत कम हुई थी, 3.5-4% के आसपास, वन ऑफ द लोएस्ट ग्रोथ एवर। सो और उसके बाद कोविड आया। तो कोविड में ये मेरी मान्यता है कि हमने स्ट्रेटजिकली
गलत डिसीजन किया टू इम्पोज दैट मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन इन द कंट्री वो भी इतनी अर्ली स्टेजेस में जब in the early stages. So we closed the economy and hurt us badly. As a result, 19-20 में we had negative growth. right 79 के बाद negative growth 2020-21 में हुई. Right, and 6% के आसपास की negative growth. right उस झटके से, उस आघात से हम पूरी तरह से उभर नहीं पाए. Despite the fact that the next 3 years we had an average growth of 8%, which is in itself very good. right But if you take the 5 years growth together, right वो मुश्किल से 4.5% हुई. और इस दौरान जो आप कह रहे थे कि 4 चीज़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो कंजम्पशन का मतलब होता है जो भी देश में आप प्रोड्यूस करते हैं या इंपोर्ट करते हैं माइनस एक्सपोर्ट, उसको लोग प्राइवेटली, हम हाउस होल्ड, आप में और बाकी सब हाउस होल्ड्स जो हैं उसको डिफरेंट फॉर्म से कंज्यूम करते हैं. चाहे गुड्स के फॉर्म्स में हो, चाहे सर्विसेज के फॉर्म्स में हो, वो कंज्यूम करते हैं. और कंजम्पशन एक्चुअली इज़ दी मेन स्टे के आदमी और किसी देश के एग्जिस्टेंस. और हमारे पास 140 करोड़ लोग तो 3 बार खाना खाएंगे भी, कपड़े भी पहनेंगे और और सेवाएं भी इस्तेमाल करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, ट्रांसपोर्ट में भी जाएंगे. वो कंजम्पशन हिंदुस्तान की स्टेज को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए. क्योंकि गरीबी का भी एक मायना ये होता है कि आपको इनफ खाने के लिए नहीं मिलता है, इनफ कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक से घर रहने के लिए नहीं होता है. सो दैट इज़ ऑल कंजम्पशन कंप्रेशन. right तो एंड पॉवर्टी रिलेटिवली स्पीकिंग. सो यू नीड टू हैव वेरी high growth of consumption. So unfortunately during this 5 years the consumption growth was also very small, less than 5%. right It has started picking up now, which should happen, because if you're growing at 8% or so for last 2-3 years, then it should translate into higher consumption. right So consumption would be there. This anything less than 7% or something is not spectacular, is not very great. So we must, if it falls below 6% or something, that consumption growth, तो आपको और हमें मानना चाहिए कि एक्चुअली हमारा कंजम्पशन उतनी गति से नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए. और कंजम्पशन चूँकि 70% करीब 65-70% ऑफ द GDP होता है, अगर ये ग्रो नहीं करता तो फिर GDP भी ग्रो नहीं करती. राइट. सो कंजम्पशन बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरा जो पक्ष आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट. राइट. सो इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली क्रिएटिंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर. सो आप फैक्ट्रियाँ बनाइए, आप एस्टैब्लिश करिए, नेटवर्क्स लगाइए, स्टूडियोज बनाइए, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग which is what the investment is. And for a developing economy like us, which has dollar income of about $2,500 per capita, we need enormous amount of investments. right Both domestic as well as foreign, both private and some government. Right, which is in infrastructure especially. So अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो हम 8-10% नहीं रख पाते हैं साल में, तो भी हमारी जो विकास की दर है, आर्थिक वृद्धि की दर है, वो बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी. हमें मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को एम करना चाहिए. राइट. एक्सपोर्ट तीसरा इंजन. थोड़ा से एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत और सारे कंट्रीज़ भी वो सब चीज़ें बनाते हैं. अब आप स्टील बनाते हैं तो चाइना भी स्टील बनाता है, तो दूसरे भी स्टील बनाते हैं. ठीक है. आप मान लीजिए चिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो और दुनिया में भी चिप्स बनाते हैं. आप टेक्सटाइल में हैं तो दुनिया में भी, और वियतनाम भी टेक्सटाइल बनाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो और दुनिया के लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं. तो आपसे दुनिया में कोई दूसरे देश क्यों खरीदेंगे? वो तब खरीदेंगे जब आपका प्रोडक्ट दुनिया से बेहतर हो, और दूसरा वो दुनिया के मुकाबले में प्राइस कॉम्पिटिटिव हो. राइट.
अदरवाइज क्यों आज खरीदेगा आपसे, राइट? सो जैसा थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इफ़ वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस बेटर Right. and more competitive products than ever, we will not be able to grow our exports. Right. These traditional exports, some agricultural produce and some diamonds, almonds, some textiles, that is more or less saturated in the world. Right. Right. That is gems and jewelry. That's not going to take you. Even some industries like refinery and others, which were also providing a lot of opportunity because we could create some refining capacity, Right. which was globally competitive, and therefore we could export. Right. But there again, the global markets are getting saturated now, Right. and because of the energy transitions and others, and these geopolitical aspects are more important in deciding the course of export over there. Right. If Russian gas is acceptable in Europe or not, or Russian oil is allowable, so and with the world again having set up more the refining capacity, so you don't have that advantage any longer. So export is our weak link Right. at this moment, and unless we sort of make long-term investment in new technologies and come up using our intelligent labor and the entrepreneurship to produce those very goods. Everywhere in the world, essentially, any country has progressed by doing some sort of reverse engineering, Right. or entering into collaborations with the technology leaders, Right. and using their own advantage, whether it's land, whether it's labor, whether it's skills or something, to produce same product at more better quality and cheaper. Right. So जब तक वो नहीं होगा, हम एक्सपोर्ट्स को ग्रो, हम कभी भी कितनी भी बात कर लें कि हम 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट कर लें, या ट्रम्प के साथ एग्रीमेंट करने में बात करेंगे भाई 500 ट्रिलियन का हम करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, या इस चाहने से कुछ नहीं होता है, अकेले चाहने से। जब तक आप सही तरीके से, तो मुझे लग रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट का इंजन जो है वो अभी भी हमारे लिए वल्नरेबल है। द लास्ट पार्ट, द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट की डिपेंडेंस, हमारी एनर्जी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। ये मोदी जी जब सरकार में आए थे तो 2015 में हमारे देश में तकरीबन 75-78% हमारी एनर्जी डिपेंडेंस थी ऑयल इम्पोर्ट। Right. और उन्होंने कहा कि हम इसको घटा के 67%, 2/3 से नीचे करेंगे, राइट? इट वॉज अ रियलिस्टिक टारगेट, डूएबल टारगेट, बट व्हाट यू नो टुडे वी हैव 85% एनर्जी डिपेंडेंस। हमारी एनर्जी डिपेंडेंस बढ़ रही है, घट नहीं रही है, राइट? बिकॉज हमारे डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन वगैरह, ONGC, ऑयल, दे हैव नॉट डिलीवर्ड, राइट? In fact, domestic production is constantly going down for last many years. Right. And our renewable transition, which would have cut the energy dependence, which should reflect into sort of decline in the quantity of imports. Right. That also has not been we have not done very well in either electronic vehicles or even in the solar power and wind power generation. While we have gone up to about 150 gigawatt of capacity or something, but we need thousands of gigawatts of the capacity in that area to be actually making dent on the import of oil. Right. Right. So हमारी जो import dependence है वो कम नहीं हो रही है। अगर आप import dependence उस चीज़ पे करें कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नई मशीन्स हैं, और उनको यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स बनाएं, तब तो शायद आने वाले समय में, कुछ समय में, इमीडिएटली हो सकता है इंपोर्ट आपका बढ़ जाए, लेकिन आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आपकी इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है वो घट सकता है। सो ये चारों जो इंजन जिसकी आप बात कर रहे थे, कंजम्पशन तो देखो नेचुरल कोर्स है, इतने पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, थोड़ी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट को जब तक हम 10% तक नहीं लेके जाएं, कम से कम 10%, और एक्सपोर्ट को इस तरह से हैंडल करें जैसे मैं, तब तक मुझे लगता है कि हम जो एक
ज़्यादा अच्छी गति पानी चाहिए जो हमारी ग्रोथ में, वो हम नहीं पास सकते। बिल्कुल। ये एक आजकल बहुत बार कहा जाता है कि अभी भी हम हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट। हाईएस्ट ग्रोइंग अगर आप 6%, दुनिया में दूसरे सभी जो देश, बहुत सारे देश डेवलप्ड हो गए आज के दिन। अब तो चाइना भी डेवलप्ड की तरफ चला गया है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी एक बड़ी निशानी ये होती है कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी होती है, पॉपुलेशन घटने लगती है। अब तो चाइना की पॉपुलेशन भी घट रही है, अमेरिका थोड़ा अलाउ करता है इमिग्रेशन, इसलिए अमेरिका की नहीं घट रही, यूरोप में सारे पॉपुलेशन घट रही है। तो जब पॉपुलेशन घट रही होती है और आपका कंजम्पशन एक तरह से हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे पहुंच चुका होता है, तो ग्रोथ नहीं होती है। बिल्कुल। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की 2% ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, 3% ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, और हमारी जैसी कंट्री के लिए 6% 7% भी कम है। तो हमें इस बात पे संतोष नहीं रखना चाहिए कि हम हाईएस्ट ग्रोथ, अरे हाईएस्ट तो रहेंगे हम, बट हाईएस्ट इज़ व्हाट? अगर 5-6% ही ग्रोथ है तो हम अपने देश को विकसित बनाने की तरफ से, या हाई ग्रोथ नेशंस बनाने की तरफ से, या हाई इनकम ग्रोथ बनाने की तरफ नहीं बढ़ पाए। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट सर। सर आई थिंक आपने तीनों ही फैक्टर्स को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया। जो हमारी पूरे ही मतलब पूरी जो इकॉनमी है उसको 3 ब्रॉड सेक्टर्स में जब ब्रेक करते हैं, विच इज़ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। करेक्ट। तो आप उसके जब ग्रॉस वैल्यू ऐड का ग्राफ देखते हैं तो काफ़ी अलग से निकल के आता है कि सर्विसेज हैं जो 8% जीवी कर रहे हैं, इंडस्ट्री 6 और एग्रीकल्चर 4। और जब इन तीनों को आप कंबाइन करते हैं देन पूरे इकॉनमी का करेक्ट आई थिंक जो नेट ग्रोथ है या ग्रॉस वैल्यू ऐड है वो 6% के आसपास कहीं निकल के आता है। तो इससे एक जो क्लियर फैक्टर दिखता है जो पूरे ही एवरेज को नीचे लेके आ रहा है वो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर। बाय द वे, एग्रीकल्चर बेसिकली फीड्स यू, राइट, एंड क्लोथ्स यू। एग्रीकल्चर का काम ये है। तो फीडिंग जो है, फीडिंग के लिए पॉपुलेशन बढ़नी ज़रूरत, कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उसके हिसाब से ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। यू नीड मोर फूड फॉर मोर पीपल। इफ यू डोंट हैव मोर पीपल, और इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन, right, only to make up that. So agriculture in this situation, when we have also come to about less than 1% population growth, and we are also moving towards a more or less stabilizing kind of growth, 3% growth in agriculture is more than enough. Right. World is awash. Hindustan is awash with the food now. We are surplus in wheat, we are surplus in rice, we are surplus in food as such. We have some deficit in pulses and some deficit in oilseed and all. But on the whole, right, we are a agricultural exporting nation now. Right. We export about $40 to $50 billion worth of agricultural goods. We import about $30-35 billion. We still have a surplus of agriculture produce. So I don't think agriculture need to grow or can grow at a very high level beyond 3 to 4%. The growth has to come only in services and industry. And still क्योंकि एग्रीकल्चर में आई थिंक जो ब्रॉड नंबर्स हैं वो ये हैं कि आपकी 50% लेबर कंट्री की उसमें इन्वॉल्व है और आउटपुट मात्र 15% आता है। तो आई थिंक वो एक फैक्टर होगा। और आपने कहीं ना कहीं नंबर्स ही पुट की कि एग्रीकल्चर चाहे जितना भी अभी 15% ही है, बट वो 3-4% से ज़्यादा ग्रो हो भी नहीं पाएगा। इसका हिस्सा तो गिरता ही जाएगा ग्रोथ का, क्योंकि पॉपुलेशन अगर आप 6-7-8% पे ग्रो करोगे और एग्रीकल्चर 3 या 4% पे भी ग्रो करता है, तो एग्रीकल्चर का तो हिस्सा कम होता चला जाएगा। इनफैक्ट एग्रीकल्चर का हिस्सा कम हो जाना ये एक्चुअली विकास का इंडिकेशन है, ना कि अदरवाइज। आजकल दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनकी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन उनकी जीडीपी का 5% से कम है। यूएस का आई थिंक 1% भी नहीं है। और लेबर जो आपने बात कही वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज वेयर द पॉवर्टी इज ट्रैप्ड। इफ यू हैव more people like 50% of workers in the country doing or showing or pretending to be doing work in agriculture for earning their income, it is actually an indication of very deep rooted poverty shelter. Right. Dunya mein now in agriculture the labor share is less than 5%. Right. We have 50%. 10 times the world average. Exactly. There are some countries which have 15, 20, 25%, but all the developed countries it's less than 5%. Right. China has also moved around that now
about less than 10% or something. So agriculture has to shed labor. The labor has to be gainfully utilized, productively utilized in manufacturing and also services. Basically services where the largest scope exists. Right. You may not like those jobs, but that is where the jobs are. Right. So today you see the delivery agents, the security guys, and data entry operators, and all kind of people doing gig workers and all. Right. That is all services. Right. Right. Or even I would say the small traders or the maids, personal Everyday, this is pure service. education, health. These are all services. Right. That is where the labor has to move from agriculture. और ऐसा नहीं है सर कि सर्विस के डोमेन में जैसे आपने बात की एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या ओवरऑल एक कन्वीनियंस वाला बास्केट हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्कोप नहीं है. मतलब अभी वहीं भी बहुत scope है. वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें Exactly. मतलब काफ़ी एलिमेंट्स ख़राब हैं. चाहे Exactly. एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो. Right. आपका जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है PLI को लेके, जो आई थिंक 2020-21 के आसपास इंडिया में किक स्टार्ट हुआ था, विच इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसको एटलीस्ट मेरे हिसाब से दो उसके दो चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है वो, कि PLI से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी आपके कंट्री में इस्टेब्लिश होगी, बाहर से एक तो FDI आएगा, और दूसरा है आप उम्मीद कर रहे हैं कि विद टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग का एक तो इन्वेस्टमेंट आ गई, और दूसरा है कि विद टाइम जो कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है कंट्री में वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा. बट आपका आई थिंक ओवरऑल पर्सपेक्टिव उसको लेके मे बी इम्प्लीमेंटेशन को लेके थोड़ा सा ल्यूकवार्म या नेगेटिव साइड में, तो एक बार उसके बारे में अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें. PLI क्या करने की कोशिश कर रही थी? देश में मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है वो रिलेटिवली नॉन कॉम्पिटिटिव है, अनकॉम्पिटिटिव है दुनिया के मुकाबले. राइट. हमारी तरह तरह की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, चाहे हम लैंड कॉस्ट ले लीजिए, इफ़ेक्टिव लेबर कॉस्ट ले लीजिए, इंटरेस्ट कॉस्ट ले लीजिए. राइट. तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, हमारे पास तकनीक बेहतर नहीं है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस इतनी ज़्यादा हैं. सो कुल मिला के देश में जो आज के दिन, एंड ये बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कि भाई इंडिया is not competitive, right, relatively because of the historical legacy, whatever reasons. Right. आप कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत सारी कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ हुई हैं जिसमें अगर आप कंपैरिजन करिए कि इंडिया प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ कॉटन बट एंड्स अप एक्सपोर्टिंग इट. राइट. रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके आप फाइनली फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं. कांट वी राइट. इवन मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंडिया. राइट. ग्लोबली कॉम्पिटिटिव. आज बांग्लादेश आपको कम्पीट कर रहा है, पहले चाइना कम्पीट करता था. राइट. सो PLI के जरिए एक निष्कर्ष निकलता है इस चीज़ से कि भाई आप क्या इसको क्वांटिफाई कर सकते हो कि आपके यहाँ कोई मैन्युफैक्चर करे और बाकी दूसरी जगह जाके मैन्युफैक्चर करे तो क्या रिलेटिव. सो इंसिडेंटली मैं उस समय सरकार में ही था, तो हम लोग ये, और दैट इज़ द फर्स्ट PLI लिटरली द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, विच इज़ बेसिकली द मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग. तो अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि अगर एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है, वो बनाएंगे वही, आप नहीं बना सकते. आप लार्जली असेंबलिंग करोगे और फिर आने वाले समय में आप उम्मीद कर सकते हो कि उनकी कुछ एक्सेसरीज, उनका जो इनपुट्स हैं वो आपके यहाँ पे बनने लग जाएं, वो लोग अपना यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम शुरू करें. कुछ वैल्यू चेन की जो पिछले पार्ट्स हैं उसमें आप डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन में चले जाएं. और ये भी अध्ययन में सामने आया कि भाई लगभग 80-85% जो दुनिया की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है मोबाइल, वो लिटरली 5-6 कंपनियाँ ही बनाती हैं. बिल्कुल. राइट. सो और थोड़ा सा अध्ययन किया तो फिर ये नज़र आया कि अगर एप्पल चाइना में बनाता है या उसके जो पार्टनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स मैन्युफैक्चरर्स, वो ताइवान में बनाते हैं या साउथ कोरिया में बनाते हैं,
तो उस या सैमसंग वाले साउथ कोरिया में कहीं और बनाते हैं। तो ऐसा अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि तकरीबन उनको हिंदुस्तान में वही चीज़ बनाने में लगभग 5-6% कॉस्ट ज़्यादा लगती है। ओह, इंटरेस्टिंग। सो ये विचार निकला कि अगर इनको ये कंपनसेट कर दिया जाए कि भाई ठीक है, आपको 5-6% ऑफ द प्रोडक्शन का इंसेंटिव हम दे देते हैं, राइट। तब तो आप आके करिए हमारे, तब तो आपका कॉस्ट पैरिटी हो गया, कॉस्ट पैरिटी हो गया, तो आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है, राइट। तो और आपको कोई सगा नहीं है, आपका कोई साउथ कोरिया में सगा नहीं है, चाइना में सगा नहीं है हमारे एप्पल का, राइट। तो आप यहाँ they said yes, we will come, राइट। so that is what brought Apple here, right? And I think that is one major success story of PLI in a way to get the Apple here, and their manufacturing base is developing, and now even further downstream contracting is happening. Tata and others are also coming into that. So that is the rationale of PLI. Interesting. Right. But अगर आप जब ये रेशनल छोड़ दो और इसको एक रूटीन इंसेंटिव स्कीम बना दो, राइट। अब आपकी एक वाइट गुड्स की स्कीम है, आपकी एक टेक्सटाइल की स्कीम है, थोड़े मोड़े पता नहीं इतनी सारी, और उनमें ना तो कोई ऐसी ग्लोबल कॉन्सेंट्रेटेड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है किसी कंपनी में जो यहाँ आए, तो आपकी चाहे ऑटोमोबाइल्स की PLI हो, चाहे आपकी बैटरीज की PLI हो, चाहे आपकी सोलर PLI, these were the 3 great possibilities of shifting manufacturing to India. The electric vehicles, the batteries, and the solar. Right. Others are routine. Whether you do PLI or you don't do PLI, it doesn't make difference. Right. It would have made difference here. But in तीनों चीज़ों में, it's the Chinese technical leadership, which we didn't want. So what we did with Apple, if we would have done with, let us say, BYD, for example, or some solar manufacturing companies, we would have got that PLI succeed. And the result is, since we didn't do it, all these 3 PLIs have been flops. Right. So that is the reason I felt at that time that we have got our PLI strategy wrong after that first success. तो पहले सक्सेस का जो बेसिस था वो ये था कि कॉस्ट का जो इनएफिशिएंसी है उसको आप काउंटर करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, एंड गेट द लीडर हियर, एंड गेट द लीडर एंड टेक्नोलॉजी एंड वो इकोसिस्टम पूरा सेटअप। एग्जैक्टली। बट वही सेम चीज़ हम जो फॉरवर्ड 3 सेक्टर्स हैं, चाहे EVs हो, सोलर हो और लेट्स से तीसरा बैटरीज, द बैटरीज, उन तीनों में ही हम क्योंकि लीडर को नहीं ला पा रहे, देन क्योंकि आप फिर वो स्कीम के थ्रू अपने डोमेस्टिक में भी inefficient players को, no, even they have not succeeded. We got best of the companies, the most powerful companies to take allocations for solar, right, as well as the automobiles, as well as for the batteries. But they have also floundered largely because they don't have technology. Right. Whether you go to the product manufacturer or you go to the further down in the value chain, you have to do business with Chinese. Right. Right, so you didn't succeed. And now, what I used to say in 2021, or I wrote about in this book also, is now true for last 3 years, or last 4 years if you include 24-25, which is virtually 2/3 to 3/4 of the PLI lifetime. So these schemes are typically for 5 to 6 years. 5 to 6 years, right. India has not disbursed even 10% of the PLI incentives, or 1.97 lakh crore, which we decided. And recent reports are suggesting that even government has realized now that this strategy is not succeeding. Right. So if it's not only in execution, that's our bureaucratic problem. Because we end up tying all these schemes with so many ifs and buts and conditions and this kind of things, that something or the other is not satisfying. Right. Itni conditionalities unless we have the simple construct like we had in the mobile, this large scale. If we have investment conditions, if we have labor conditions, if we have value addition conditions, we have export condition, we have this condition, we have that condition,
And so many things we tie up make the scheme complicated, but that's the bureaucrat's contribution. Right. The strategic policy contribution is what we missed out in these schemes. And by making this is a rundown, normal, routine schemes of the 14, I would say these 4 were strategic, Right. where we should have succeeded. The rest 10 are very ordinary and Right. so some of them have not even caught up. Right. And some of them were routine, like food processing or pharmaceuticals. There is nothing you Medical manufacturing devices also, I think we are exactly. doing. So Right. those were routine, low value kind of. So PLI is unfortunately another policy intervention in the country which has grossly underperformed. Very interesting. Which still has a lot of potential. Of course, there is big but- potential. Right. But strategic, and you were saying implementation from a bureaucracy standpoint, दोनों में ही challenges इस तरीके से रहे हैं कि वो Policy and implementation, both. Right.